Hello everyone, good afternoon. Welcome to the webinar session. Welcome to all participation here and thank you for being here today. I'm Sampada from Rajlakshmi Solutions Private Limited. About Rajlakshmi Solutions, we are into 4 different sectors. First is Bitrix 24, the complete business solutions. Second, Skill India, the educations of children. Third one, SAP B1, the key of every business solutions. And fourth is Tally. Tally is an accounting software. We are a 5-star partner of Tally Solutions, and we are also priority partner for Tally Server 9 and Tally Virtual User. Also, we are in a GBLA, means government and very large account. Yes, so why we are here today? So today's topic is e-invoicing in Tally Prime. So today's presenter is Miss Manali and one more presenter is Mr. Krishna. So Manali, are you here? Yes, Hello. Ma'am. Good evening. Yes. Good evening. Thank you, Manali. Welcome. Mr. Krishna. Yes, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Yes. Good evening. Yeah, Manali. So over to you. You can start. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Good evening, all. First of all, wish you all Happy New Year. This New Year, we wish you all luck, prosperity, and health, and look forward to continue serving you. So, welcome all in our today's session. This is Manali here, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, our today's topic is e-invoice. We can say most awaited and very hottest topic in today's scenario, e-invoicing. So first I will share my screen here. Is it visible? Yes. Okay, thank you. So first अभी हम लोग देखेंगे कि exactly e-invoice है क्या. This is our complete Rajlakshmi team. Then we'll start our today's topic, e-invoicing. So first we'll check what is e-invoice. अभी आप सब लोगों ने सुना रहेगा कि e-invoice आने वाला है. पिछले कुछ दिनों से या फिर महीनों से हम लोग सुन रहे हैं कि e-invoice अभी सबको अप्लाई होने वाला है. तो टैली से हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, कब अपडेट आएंगे. तो इतने सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कस्टमर्स के. तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है. यस, इन टैली प्राइम रिलीज 1.1 इज नाउ कैपेबल टू जनरेट ई इनवॉइस. विद द हेल्प ऑफ टैली प्राइम 1.1 यू कैन जनरेट योर ई इनवॉइस. ठीक है. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज ई इनवॉइस. ई इनवॉइस इज अ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. ई इनवॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ IRP, यूनिक IRN and signed QR code. Basically, e-invoice is the exchange of the invoice document between supplier and buyer in an electronic format. E-invoice a completely electronic document है, we can say, और it includes the IRP known as the Invoice Registration Portal, which is authorized by the Government of India. E-invoice के लिए specifically ये portal हमें provide किया है. Then next is IRN. What is IRN? IRN known as Invoice Reference Number. जब भी आप e-invoice जनरेट करोगे पोर्टल के ऊपर तो आपको एक यूनिक IRN नंबर जनरेट होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज QR कोड. जब भी आप e-invoice जनरेट करोगे या फिर उसका प्रिंट निकालोगे तो इनवॉइस के ऊपर एक पर्टिकुलर QR कोड प्रिंट होके आ जाएगा. सो टैली हमारे इसमें क्या हेल्प करेगा. So Tally Prime smartly identify the transactions and generate the e-invoices. Capability to generate the e-invoice is instantly without the need for manual intervention. It will make it easier and simple. So basically e-invoice registration is a one-time task on the IRP. और इसके साथ साथ और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी. अगर इन केस आपको सिंगल ई इनवॉइस जनरेट करना है तो आप सिंगल इनवॉइस जनरेट कर सकते हो. इफ आपको अगर बल्क इनवॉइस जनरेट करने हैं इन सर्टन बिजनेस सिनेरियो यू मे रिक्वायर टू जनरेट द बल्क इनवॉइसेस इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग वन बाय वन इनवॉइसेस. सो एट दैट टाइम यू कैन जनरेट बल्क इनवॉइसेस आल्सो. हियर टैली प्राइम विल fetch the QR code and generate the e-invoices automatically. जो भी पैरामीटर्स हमें दिए हैं, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपरली आप फिलअप करते हो देन आपका ई-इनवॉइस जो है वो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट.
अभी थोड़े टाइम में हम लोग पीपीटी खत्म होने के बाद लाइव सेशन देखेंगे कि प्राइम से हमें ई इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट हैज चेंज। सो अभी ई इनवॉइस आने के बाद हमें कौन से चेंजेस आए हैं या फिर ये ई इनवॉइस कौन सी कस्टमर्स को अप्लाई होने वाला है वो अभी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे मैं और एक ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये ई इनवॉइस जो है ये हमारा 1 अक्टूबर 2020 से ही इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट एट दैट टाइम कंडीशंस कुछ डिफरेंट है, यानी कि जिनका भी जो भी सप्लायर है जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन 500 CR है, उन्होंने ऑलरेडी 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट किया है। बट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 इसमें से क्या चेंजेस हुए हैं? तो फर्स्ट ई इनवॉइस जो है वो ऑल टैक्स पेयर्स के लिए कंपलसरी रहेगा, लाइक B2B सप्लायर हो या फिर एक्सपोर्टर्स हो, उनके लिए कंपलसरी ये ई इनवॉइस जनरेट करना है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, लाइक अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन 100 CR है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा, और ये जो टर्नओवर है वो आपके पैन बेस के ऊपर डिपेंड रहेगा एंड ये कैलकुलेट होगा आपके इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अगर आपने 100 CR क्रॉस किए हो तो आपको 1 जनवरी से ई इनवॉइस जनरेट करना है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑन GST पोर्टल। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ई इनवॉइस हमें अपलोड करना है, लोड करना है, तो वो कौन सी फॉर्मेट में अपलोड करना है या फिर कौन सा फॉर्मेट वहाँ पे सुटेबल रहेगा, तो JSN फॉर्मेट वहाँ पे हमें सपोर्ट करेगा, यानी कि प्राइम से जो भी आपका ई इनवॉइस जनरेट होने वाला है उसका फॉर्मेट रहेगा JSN। सो अगर आप प्राइम में कम्प्लीटली जो भी मैंडेटरी फील्ड्स या फिर मैंडेटरी पैरामीटर्स हमें दिए हैं वो अगर आप प्रॉपरली फुलफिल करते हो तो आपका जो ई इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, आप इनवॉइस जनरेट करोगे उस टाइम पे आपको एक IRN नंबर जनरेट होके आ जाएगा विच कंटेन 64 कैरेक्टर्स। ये जो IRN नंबर है उसमें 64 कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है एंड बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ GSTN नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस नंबर एंड डॉक्यूमेंट नंबर। सो इसका कॉम्बिनेशन करके आपका IRN नंबर जनरेट होने वाला है। देन नेक्स्ट इज QR कोड। IRN के साथ साथ आपका QR कोड भी जनरेट होने वाला है ई इनवॉइस के ऊपर, सो इट कैन वैलिडेट द इनवॉइसेस जनरेटेड बाय द IRP पोर्टल। नेक्स्ट इज इनवॉइस अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन। सो ये भी फंक्शन बहुत ही अच्छा हमें अवेलेबल करके दिया है, लाइक इन केस अगर आपके इनवॉइस में कुछ इशू हुआ है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना है तो वो इनवॉइस आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, और ये फैसिलिटी आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल है एंड प्राइम में भी अवेलेबल है। बट आपको एक चीज यहाँ पे नोट करनी होगी, अगर आपको कोई भी इनवॉइस कैंसिल करना होगा तो विद इन 24 आवर्स में आपको उसे कैंसिल करना रहेगा। जब से आपने क्रिएट किया है उसके बाद विद इन 24 आवर्स में आपको इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो। बट और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो इनवॉइस के अगेंस्ट आपने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया होगा। नेक्स्ट इज ई इनवॉइस डिटेल्स। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, दिस इज आवर ई इनवॉइस लुक लाइक दैट। मीन्स अभी आपका ये जो ई इनवॉइस है उसके ऊपर राइट हैंड साइड में QR कोड जनरेट हुआ है, लेफ्ट में आपका IRN नंबर दिख रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारे डिटेल्स आपके इनवॉइस में आने वाले हैं। इसके साथ साथ और कौन से डिटेल्स हमें मिलेंगे, लाइक सेलर एंड बायर के डिटेल्स, कंसाइनी के डिटेल्स, डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स आ गए, देन आइटम के डिटेल्स लाइक आपका क्वांटिटी, HSN कोड, अमाउंट एंड इवन आपका इनवॉइस के डिटेल्स लाइक इनवॉइस नंबर, इवन अदर चार्जेस कुछ आपने लगाया है तो वो डिटेल्स भी आपको ई इनवॉइस में आ जाएंगे। इफ अगर यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट का बिल है तो एक्सपोर्ट के डिटेल्स लाइक आपका शिपिंग बिलिंग नंबर, पोर्ट कोड, कंट्री का कोड, ये सारे डिटेल्स आपको ई इनवॉइस में आ जाएंगे। इवन अगर आप ई-वे बिल जनरेट करते हो तो ई-वे बिल के भी डिटेल्स आपको ई इनवॉइस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ई इनवॉइस प्लस ई-वे बिल जनरेशन। कुछ न्यू अभी यहाँ पे हमें मिलता है, लाइक ई-वे बिल तो हम लोग पहले से ही जनरेट करते आ रहे हैं। जब से ई-वे बिल आया है फरवरी 2018 से, तब से हम लोग ERP 9 से तो ई-वे बिल जनरेट करते हैं। सो अभी टाइम में क्या न्यू है, सो अभी हम लोग देखेंगे। बाय डिजाइनिंग द ई इनवॉइस सिस्टम, IRP इंटीग्रेट्स विद द GSTN एंड ई-वे बिल सिस्टम। लाइक जब भी हम लोग ई-वे बिल जनरेट कर रहे थे ERP से, हम प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे थे वहाँ पे, फर्स्ट हम लोग JSN फाइल जनरेट करते थे एंड वो JSN हम लोग अपने ई-वे बिल पोर्टल पे अपलोड करते थे। सो इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। बट नाउ इन टैली प्राइम यू कैन जनरेट द ई-वे बिल अलॉन्ग विद द जनरेटिंग ई इनवॉइस फॉर दोज इनवॉइसेस दैट रिक्वायर ई-वे बिल। यस मीन्स आपका ई इनवॉइस जैसे ऑटोमेटिकली पोर्टल पे अपलोड होने वाला है, वैसे ही सेम आपका ई-वे बिल भी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा।
बट यहाँ पे मैं और एक चीज आपको नोट करना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो कि विदाउट ई इनवॉइस ओनली मेरा ई वे बिल ही ऑटोमेटिकली अपलोड होना चाहिए, तो इन करंट सिनेरियो वो ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज ऑफलाइन जेसन. This is also very helpful option given by Tally Prime. In the exceptional case, if you do not have internet connectivity, then how you can generate your e-invoice? So here Tally Prime release 1.1 will gives you flexibility to generate offline JSON file. So ये offline JSON file आप विदाउट इंटरनेट भी आपके पोर्टल पे इजीली मैन्युअली अपलोड कर सकते हो. सो इसकी वजह से आपका कोई वर्क हैम्पर नहीं होगा. Next is status of each invoices. Yes, here we can get the status of each and every invoices. Like यहाँ पे प्राइम में हमें ई इनवॉइसिंग का रिपोर्ट अवेलेबल है, उसके अंडर आपको आपके सारे इनवॉइसेस का स्टेटस पता चलेगा. लाइक आपने कितने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं, उसमें से कितने कैंसिल हुए हैं, उसमें से रिजेक्ट होके कितने आए हैं, तो ये सारे डिटेल्स हमें एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट इज जनरेट IRN फॉर पेंडिंग इनवॉइसेस. लाइक मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, आप सिंगल इनवॉइस के साथ साथ बल्क इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो. तो अगर इनकेस आप जब ये एंट्री पास कर रहे हो उस टाइम पे आपने कमांड नहीं दिया है ई इनवॉइस के लिए, आप चाहते हो कि आप बाद में जनरेट करना चाहते हो और मीनवाइल सपोज आपके हाथ से छूट गया, आप भूल गए वो जनरेट करने के लिए, तो वो कहाँ से हमें पता चलेगा? तो ये टैली प्राइम में एक बकेट हमें प्रोवाइड करके दिया है पेंडिंग इनवॉइसेस के लिए. सो उसके हेल्प के थ्रू आप आपका IRN जनरेट कर सकते हो जो भी आपके पेंडिंग इनवॉइसेस रहेंगे. और एक मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगी, अगर आप नीचे देख रहे हो स्क्रीन पे तो येलो कलर में एक IRN का पार्ट हमें हाईलाइट हुआ दिख रहा है, तो ऐसे कुछ आपका IRN नंबर आपको शो होगा इनवॉइस के ऊपर. Next is get IRN info. Here we get the IRN for the IRN manually generated invoices or IRN rejected invoices or invoices for which QR code is deleted or corrupted. Yes, अगर in case आपने मैन्युअली कोई इनवॉइस जनरेट किया है पोर्टल पे या फिर रिजेक्ट किया है, उस IRN की अगर इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो वो भी आप इजीली प्राइम से व्यू कर सकते हैं. Next is voucher modified after IRN registration. Here we can identify the e-invoices which were modified after the registration. Registration होने के बाद, IRN का रजिस्टर होने के बाद अगर आप कोई वाउचर मॉडिफाई कर रहे हो, उससे अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो भी आप प्राइम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज IRN कैंसिलेशन. लाइक फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि IRN कैंसिलेशन की फैसिलिटी हमें पोर्टल एंड प्राइम दोनों जगह पे भी अवेलेबल है. अभी हो सकता है कुछ रीजन की वजह से हमें कैंसिल करना पड़े, लाइक ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री, अगर डेटा एंट्री में कुछ मिस्टेक हो गया है, आपका ऑर्डर कुछ कैंसिल हुआ है, तो उसके रीजन की वजह से आप IRN आपका कैंसिल कर सकते हो. बट अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि विद इन 24 आवर्स में आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना होगा. Next is invoice rejected by the IRP. Yes, this is also beautiful point given by the Tally Prime. जो भी इनवॉइसेस आपके रिजेक्ट हुए हैं, जब भी आप एंट्री कर रहे हो उस टाइम पे आपने ई इनवॉइस के लिए कमांड दिया और अगर सपोज आपको एरर आया कि इनवॉइस रिजेक्टेड बाय द IRP, तो वो अपना इनवॉइस क्यों रिजेक्ट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो डोंट वरी, उसका भी ऑप्शन हमें प्राइम में अवेलेबल है. अगर आप ई इनवॉइस के रिपोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको रिजेक्टेड इनवॉइस का कंप्लीट एक कॉलम मिलेगा और उसके अंडर उसके सामने उसका रीजन भी आपको अवेलेबल रहेगा. सो वो रीजन देख के आप वो रीजन इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो एंड यू कैन जनरेट योर रिवाइज्ड ई इनवॉइस. Next is delete stored IRN info. Yes, here we can delete the stored IRN information including the QR code and start freshly if required. Yes, जो भी आपका स्टोर किया हुआ IRN information अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो एंड आप इजीली उसे अगेन फ्रेश भी स्टार्ट कर सकते हो. सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट which is explained by me. तो अभी मिस्टर कृष्णा will explain you how to generate the e-invoice from Prime. So now Krishna, it's over to you. Thank you everyone. Yes. Thanks to Manali madam. Very nice presentation. Happy New Year all. Hello everyone. Welcome to Rajlakshmi Solution Private Limited. Before going to start the practical session, I want to introduce myself. My name is Krishna Rane from Rajlakshmi Solution Private Limited. Screen is visible, yes? Yes, it's loading. Yes, it's loading. Yes. ओके, सो द इनवॉइसिंग के अपडेट के लिए हमको जाना होगा टैली सॉल्यूशन के वेबसाइट पे. यहाँ पे आप देख सकते हो टैली प्राइम 1.1 रिलीज आपको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है.
नेक्स्ट हम जाते हैं ई इनवॉइसिंग सिस्टम लॉगिन पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको ई इनवॉइसिंग का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट एपीआई यूजर आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थ्रू जीएसपी पे ऑप्शन में यहाँ पे हमको टैली प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे मुझे एक यूनिक यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये है वो आपका एपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम जाते हैं टैली में। जैसे मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जाना है एप11 फीचर्स में। तो जैसे मैं एप11 फीचर में एंटर करूँगा, आपको जीएसटी फीचर्स में एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ई इनवॉइसिंग फीचर्स। तो ई इनवॉइसिंग रिलेटेड जो भी सेटिंग यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो ई इनवॉइसिंग फीचर्स में। जो जैसे मैंने एप11 फीचर्स में जाके इनवॉइसिंग फीचर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कब हुआ, तो यहाँ पे आपको सेट करना है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी से 2021 रहेगा। यहाँ पे बिल फ्रॉम प्लेस, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आप कहाँ से बिल जनरेट करो, तो यहाँ पे आपका लोकेशन सेट करना रहेगा। डिफॉल्ट पीरियड यहाँ पे 3 डेज ही रहेगा। सेंड ई वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो आप जो भी ई इनवॉइसिंग क्रिएट करे हो उसके साथ आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम यस करेंगे। नेक्स्ट आता हूँ मैं सेल्स वाउचर में। जैसे मैंने ई इनवॉइसिंग का सेटअप किया तो यहाँ पे मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ। जैसे मैंने एंट्री पास किया यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे मुझे प्रोवाइड जीएसटी ई इनवॉइस डिटेल्स एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे यस करूँगा, यहाँ पे आपको ई इनवॉइस डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो प्लेस ऑफ पार्टी यहाँ पे बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। नेक्स्ट जैसे मैंने एंटर किया वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे मुझे इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे शो हो रहा है आप देख सकते हो ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है। तो इसका हम प्रीव्यू देखेंगे अभी। तो प्रीव्यू में कैसे डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप IRN नंबर जो भी अभी मनाली मैम ने बताया, जैसे 64 कैरेक्टर्स का जो IRN नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कोड के साथ। तो आपका ये जो है वो डायरेक्टली टैली से प्राइम से जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सचेंज मेनू पे, जो टॉप मेनू पे आपका टैली प्राइम में डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सचेंज करूंगा, जैसे मनाली मैडम ने बताया जो भी मेरा इनवॉइसिंग में IRP पोर्टल में सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनवॉइसिंग पोर्टल पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे देख सकते हो आप सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। तो ई इनवॉइसिंग मुझे किस किस का जनरेट करना है, तो यहाँ पे आप सिंगल भी क्रिएट कर सकते हो या बल्क में भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे सामने अभी जो 15 ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ से मैं इनका इनवॉइसिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले सब सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा फॉर IRN जनरेशन। तो यहाँ पे जैसे आप यस करेंगे तो 1 क्लिक में आपका 15 IRN जनरेशन हो सकता है। 15 इनवॉइसिंग का आप यहाँ से IRN जनरेट कर सकते हो। तो ये 1 क्लिक में आप बल्क में भी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, सिंगल भी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाते हैं, जो इनवॉइसिंग क्रिएट करेंगे तो उसका रिपोर्ट कहाँ ना कहाँ तो आपको मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम टैली में 300-400 रिपोर्ट्स है। तो एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आपको ड्रिल डाउन करने से अच्छा गो टू फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिया है गो टू का फंक्शन। जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे सर्च करना है ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट। दोस्तों मैं ई इनवॉइसिंग टाइप करता हूँ, यहाँ पे ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट मुझे डिस्प्ले होता है। वहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ई इनवॉइस रिलेटेड, तो यहाँ पे देख सकते हो आप दिस रिपोर्ट हेल्प यू मैनेज ऑल योर इनवॉइस रिलेटेड टास्क एंड एक्सेप्शन विद एज। तो जैसे मैं इनवॉइस क्रिएट करते समय मुझे IRN कैंसलेशन करना है या जनरेट भी करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइसिंग नॉट प्रोवाइड, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इनकरेक्ट या मिसमैच इन्फॉर्मेशन है हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एरर, दिस टाइप का एरर रह सकता है।
बायर एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो यहाँ पे हम फिर से उसको चेंज कर सकते हैं अल्टर करके। तो दैट्स इट, टैली प्राइम विल हेल्प यू सेंड द राइट डेटा टू द IRP पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम रिजेक्टेड इनवॉइस। तो कभी कभी हम टैली इनवॉइस करते समय वहाँ पे हमारा इनवॉइस कुछ गलतियों से रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें क्या क्या टाइप के एरर आ सकते हैं, तो आपको इनवॉइसिंग रिपोर्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, रीजन फॉर रिजेक्शन, HTTP कोड इज इनवैलिड, रीजन फॉर रिजेक्शन डुप्लीकेट IRN, जैसे जो भी एरर है यहाँ पे आपको रीजंस रिजेक्शन के साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो टैली प्राइम विल इनिशियली हेल्प यू मैनेज द सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम IRN रजिस्टर। दिस IRN रजिस्टर विच लिस्ट्स ऑल इनवॉइस रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद देयर स्टेटस। जो भी ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे किया है वो आगे पे उसका मुझे स्टेटस भी शो हो जाएगा। तो इस टाइप के आप डिस्प्ले देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला था इनवॉइसिंग के साथ आपको ईबे बिल भी जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ये मैसेज पर ये जो पॉपअप हमको दे रहा है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग एंड ईबे बिल, तो आप यहाँ से जैसे यस करेंगे तो आपको ई इनवॉइसिंग के साथ आपका ईबे बिल भी जनरेट होने वाला है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ई इनवॉइसिंग एंड ईबे बिल जनरेट सक्सेसफुली, आपको मैसेज आ जाएगा। आप प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ पे IRN नंबर विद QR कोड के साथ भी आया है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईबे बिल भी नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है इनवॉइस पे। तो प्रैक्टिकली आपको ईबे बिल जेसन फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं, आपका जो ईबे बिल नंबर है यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट होके आ जाएगा। This is the simple process of generating e-invoicing for Tally Prime. So everyone update Tally Prime and take the right advantage of this product. So that's it from my side. Thank you all. Okay. Thank you very much, and nice presentation, Krishna and Manali also. And here is the new one is it's very important is Tally Prime upgradation, migration, and next the implementation of e-invoicing, right? So Bhagwati sir, are you here? Yes. Yeah, Miss Ambada. Yeah, I am here. Hi, Yes, Samta. yes. Hi, good evening. Good evening, sir. Yes, so please recap the e-invoicing related other things. So can other people are requesting for the update. Sure. Yes. Thank you, Samta, and thank you, Krishna and Manali. You done the nice presentation in terms of the e-invoicing information. आपने इतना information दे दिया कि अब मेरे लिए कुछ रहा नहीं। So e-invoicing, why e-invoicing? मैं आपको simple question करूँगा, why e-invoicing is there? E-invoicing आने से आपके internally जो supplier and buyer के बीच में जो transparency थी कि supplier ने bill generate किया और उसने return file किया या नहीं किया, अब वो at a time में हो गई है कि when supplier will generate the e-invoicing, yeah, definitely this parameters is there. We will not talk on that parameter 500 crore, 100 crore because you all guys are aware about that things. So मैं आपको ये बोलूँगा कि e-invoicing आने से supplier जो bill generate कर रहा है within 24 hours they have to upload on the GSTN portal, then they can generate that QR code and then they can display the particular invoice and that things and goods whatever services. तो इससे एक बेनिफिट से सबसे बड़ा किसी भी बायर को हो रहा है कि बायर हैव अ वेरी क्लियरिटी अबाउट दैट कि यस उसका इनवॉइस जनरेट हो गया है, इनवॉइस अपलोड भी हो गया है, जीएसटी सेटअप भी वो उसको मिलने ही वाला है। नहीं तो बहुत से केस में क्या हो रहा है, जो हमने देखा है पिछले 3, 3.5, 4 साल की जो जर्नी है जीएसटी की, उसमें हमने एक चीज देखी कि काफी लोगों ने इनवॉइस तो किए, जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, अपलोड कर दिया, बट buyer will not get the setup of the GST input credit. Same way invoice generate तो हुआ, फिर कुछ changes कर दिए उसने, again that problem is there. Third, invoice generate तो हुआ, payment नहीं हुआ,
So lot of challenges people are facing, buyer are facing. But now in this scenario, e-invoicing आने से, this is a very clarity and transparency. People are secure, buyer are secured about his GST, input credit, and they get the benefits ultimately. So this is a very unique feature in the very unique system launched by the government of India. Thankful to you. And next, yeah, definitely आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा कुछ ऑप्शंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, तो you have definitely you have to generate the invoice through any software. So now Tally is there, and Tally is always with us, and Tally is always supporting all the time. Okay. So now e-invoicing is available in the Tally Prime. Okay, that's release is 1.1. So if you are in the Tally ERP 9, yeah, I request you to please migrate your Tally ERP 9 to Tally Prime and coordinate with your account manager. They are working with you hard from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. You can also contact to our support desk, and you can also contact with me directly because my number is also available in the chat board. And you can subscribe the YouTube channel for the all upcoming updations, and like this all sessions are recorded, so you can also check these videos, and you can get the benefit again and again in future also. So ultimately you are benefited, we are benefited. So I request you activate your Tally Prime, migrate your Tally Prime, because many of the customers are not using Tally Prime because of the some concern, because of the वो जो हमारी आदत हो जाती है ना, we are comfortable with the Tally ERP 9, so definitely we don't want to change. But if you change the Tally ERP 9 to Tally Prime, definitely you will get a lot of benefits, because lot of updates will come in the Tally Prime, and there is a lot of options. Earlier we already show you one search option. That is a fantastic option in the Tally Prime. We are getting that advantage, and many people are talking on that. So e-invoicing, yeah, your life is easy if you are using e-invoicing through the Tally Prime, and you will get all benefits, all type of reports, all type of rejection, and etc. Lot of blah 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 blah, lot of things are there. So I request you people to you connect with us and upgrade your Tally Prime and enjoy e-invoicing. एंड आपके रेफरेंस में, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल्स में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर कर रही है, जिनके पास ई-इमेजिंग के लिए सोल्यूशन नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो गिव द रेफरेंस की बॉस, दे कैन कनेक्ट विथ अस एंड वी विल हेल्प यू आउट. तो थैंक यू वेरी मच, एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट ऑन द चैट बोर्ड एंड वी आर हैप्पी टू आंसर यू. प्लीज. I think today not a single questions in the chat board, so it's okay. So yeah, Sampada, now you can carry on. Thank you. Yes, sir. So we are wind up this session, and if you have any questions and any doubts, you can connect with our support number with our dedicated BM account manager. So you can connect through the email and SMS on WhatsApp also. Okay, so thank you everyone. Thank you Manali and Krishna for again, and thank you sir. Thank you Bhagwati sir. Thank you very much. And, thank you everyone. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you to all patient here, and thank you for joining also. Yeah. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you sir.